So in this sum, okay, so this is basically your 8th sum of your exercise. तो अब क्या है कि we can see कि this data is particularly continuous one because the upper limit and the next lower limit is same 6 6 10 10 14 14 20 20 28. So this is a continuous data, but there is a problem in this sum that the class size is not same. As you can see that the difference is 6 4 4 6 8 10 and 2. So when you do not have equal class intervals or different class sizes, using of step deviation method becomes little difficult. Okay, it's not that कि आप यहाँ पे step deviation नहीं लगा सकते, it becomes difficult. Using of direct method is time consuming, so therefore we'll use assumed mean method. So what was the formula for calculation of the mean by assumed mean method? So the formula for mean was a plus sigma fi ui upon fi di upon sigma fi. तो सबसे पहले तो वी आर टू कैलकुलेट द क्लास मार्क. अब क्लास मार्क में देखो वैसे होता क्या था बेसिकली व्हेन वी वर टू डू द प्रीवियस सम्स. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, सिर्फ एक ही क्लास मार्क कैलकुलेट करते थे. उसके बाद वी यूज टू ऐड द क्लास साइज, बट नॉट दिस टाइम. तो दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव इक्वल क्लास इंटरवल्स, बट एज यू कैन सी द क्लास इंटरवल्स आर नॉट इक्वल राइट नाउ. ठीक है, तो you need to calculate the class marks separately for each. So 6 plus 0 by 2 you will get 3, 10 plus 6 16, 16 by 2 you will get 8, 14 plus 10 24 by 2 you will get 12, and this 34 by 2 you will get 17, and here 28 plus 20 you will get 48 by 2, this will be 24, this will be 33, and this will be 39. So having done this, we need to move ahead. We need to assume the mean. Okay, so we'll say that the middlemost value is 17, so we'll consider this as a assumed mean. तो note down one thing कि आपको फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में से assumed mean नहीं लेना, आपको जो xi क्लास मार्क वाला जो होता है उसमें से assumed में से you are to calculate the assumed mean. Okay, so now we are to calculate di. Di is given by xi minus a. So here xi is 3 and assuming 17, so this will be minus 14. Next 8 minus 17, this will be minus 9. 12 minus 17, this will be minus 5. 17 minus 17 will be 0. 24 minus 17, it will be 7. 33 minus 17, it will be 16, and 39 minus 17 will be 22. In the next column we are supposed to calculate fi into di, that product of this column and this column. So 11 into 14, that will be minus 154, this will be minus 90, this will be minus 35. 7 into minus 5, 4 into 0 0, 4 into 7, this is 28, 3 into 16 48, 1 into this 22. So if you add them all, you will get this as minus 181. So using this formula, this is basically your sigma fi, and this is sigma fi di. Substituting the values, a is 17, sigma fi di is minus 181, and this is 40. तो बेसिकली जब मीन कैलकुलेट करना है, आई वुड से दैट प्लीज कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल फर्स्ट एंड देन सबट्रैक्ट और ऐड विद द अज्यूम्ड मीन 17. सो दिस विल बी minus 4.52, and if you subtract this, so your answer will be 12.48 approximately. Okay, so this is your answer, and this is how you can calculate the mean of this data when the class intervals are not same. Now switching on to the last sum for the mean. So basically this is your third sum in the NCERT exercise.
तो वी आर डिस्कसिंग इट लेटर क्योंकि ये सबसे अलग टाइप है. तो इन दिस सम व्हाट वी आर गिवन विद, वी आर गिवन दैट द मीन ऑफ द डाटा इज 18. ओके, एंड देन दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f. तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू, वी शुड कैलकुलेट सिग्मा fi, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो इफ़ यू ऐड देम 7 + 6 13 22 35 40 44. तो प्लीज़ ये वेरिएबल है, इसको साइड पे रखो. दिस विल बी 44 + f. तो कई स्टूडेंट्स 44f लिख देते हैं, दैट विल बी रॉन्ग. तो आपके पास कितना जाएगा 44 + f. इन द नेक्स्ट कॉलम कैलकुलेट द xi, दैट इज़ योर मिड पॉइंट. तो इनका मिड पॉइंट कितना आएगा 12. एज यू कैन सी दैट द क्लास साइज इज सेम इन ऑल द इंटरवल्स. 2 का है तो 2 ऐड करो 14, 2 ऐड करोगे 16, 2 ऐड करोगे 18, फिर आ जाएगा 20, 22 एंड 24. तो मिडल मोस्ट वैल्यू इज 18. लेट अस से दिस इज योर अज्यूम्ड मीन. इन द नेक्स्ट कॉलम यू मस्ट कैलकुलेट ui. तो उसका फॉर्मूला क्या था, xi - a/h. तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड से जब हम सम को सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी द मोस्ट ईजिएस्ट वन. तो बताया था कि आपको इसके अंदर करना क्या चाहिए कि जब भी आप ui का कॉलम बनाते हो, यू डोंट हैव टू इवन थिंक वॉट यू आर सपोज टू डू. जो अज्यूम्ड मीन है उसके सामने 0. अब काउंटिंग पूरी कर दो, 1 2 3 -1 -2 -3. तो प्लीज़ नोट दिस कि आपके पास जो नंबरिंग है -1 -2 -3 ऐसे जाएगी, -1 -2 -3 ऐसे नहीं करना. इन द नेक्स्ट कॉलम फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ fi एंड ui. तो 7 × -3 -21. दिस विल बी -12 -9 0 f 10 and 12. तो if you add all these you'll get plus f. और अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो you'll get -20. you'll get -20 plus f. So here we need to calculate class size, that is class height, upper limit minus lower limit. So this will be 2. Now using the formula for the mean by step deviation, so that was a plus sigma fi ui by sigma fi into h. तो यहाँ पे आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. मीन इज गिवन टू बी 18, एज्यूम्ड मीन इज 18, सिग्मा fi ui is -20 plus f, total sigma fi is 44 plus f into h. Subtracting 18 over here you'll get 0, -20 plus f and h was basically 2 with us. तो 44 plus f into 2, multiplying this over the other side, 0 से multiply होकर सारा 0, -20 plus f into 2, 2 से डिवाइड कर दोगे तो -20 plus f. और यहाँ पे आपके पास f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20. सो हेयर वी आर डन विद द कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर दिस सम where the frequency was missing. Okay, so the next topic that we are to start right now is basically the mode. So we know that the mode of the data is the most occurring frequency. तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ क्वाइट ईजी, और इसके सम्स जो हैं वो भी काफ़ी ईजी, काफ़ी जल्दी हो जाते हैं. तो बेसिकली द फॉर्मूला फॉर मोड इज L plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h. So what is the L? Basically L is the lower limit of the model class. f1 is the frequency corresponding to model class. f0 is frequency above f0 and f2 is frequency below f1 and h is again the class size, that is upper limit minus lower limit. ओके तो अब इस सम को स्टार्ट कैसे करना है, मोड के सम को. सबसे पहले तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू फाइंड द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास ढूंढनी कैसे है, बहुत ज़्यादा इजी है. ये आपके पास सारी की सारी क्या हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं. दीज आर ऑल द फ्रीक्वेंसीज. अब इन फ्रीक्वेंसी में देखो आपके पास सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, दैट इज़ 8. तो इस 8 के अराउंड व्हाट यू नीड टू डू, आपने ऐसे ब्लॉक बना देना है. दिस ब्लॉक विल बी योर f1. okay, and this block will correspond to your model
क्लास. सो तो F1 के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज F0 और F1 के नीचे जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज F2. तो इस मॉडल क्लास में द लोअर लिमिट दैट इज योर L. तो हाउ यू नीड टू स्टार्ट विद दैट हेयर F1 is 8, therefore model class is 3 to 5. तो आपके पास L कितना आएगा 3, H कितना आएगा दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो है 2, F1 इज 8, F0 इज 7 एंड F2 इज 2. अब मोड का फॉर्मूला कैलकुलेट F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. वैल्यूज पुट करो. L की वैल्यू 3 प्लस, इस प्लस को भूलना जाना, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगेट पुटिंग दिस वैल्यू, दे जस्ट फॉरगेट टू पुट प्लस. तो F1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके पास दैट इज 8, F0 7, 2 टाइम्स 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2, दिस विल बी 3 प्लस 1 और यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास 2. इसको सारा सॉल्व करोगे दिस विल बी 7. तो दिस विल बी 3 प्लस 2/7. इट्स बेटर कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो. 3 प्लस 0.286 इट विल बी 3.286. सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मोड ऑफ द डाटा. तो विल प्रैक्टिस वन मोर सम ताकि आगे कॉन्सेप्ट जो हैं थोड़े और ब्रशअप हो जाएं. सो वी हैव वन मोर सम. ओके, सो इन दिस सम वी हैव टू कैलकुलेट द मोड अगेन. तो बिफोर वी स्टार्ट विद द कैलकुलेशन, ठीक है, वी नीड टू फाइंड द मॉडल क्लास. एंड हाउ कैन वी फाइंड द मॉडल क्लास कि आपको सबसे पहले हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखनी है. सो इस फ्रिक्वेंसी वाले टेबल में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 61. तो यू नीड टू मेक अ ब्लॉक ओवर हेयर एंड बेसिकली दिस इज योर मॉडल क्लास. मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट होती है दैट इज योर L. दिस इज योर F1, F1 के ऊपर F0 और F1 के नीचे F2. तो हेयर योर मॉडल क्लास is 60 to 80. In this model class you will find the lower limit that is 60. आपके पास F1 है 61, F0 है 52 and F2 is 38. Now you need to calculate the height. तो आपके पास कितना आएगा वो upper limit minus lower limit that is 20. Now using the formula for the mod is L plus F1 minus F0, 2F1 minus F0 minus F2 into H. आपके पास L कितना है 60, F1 है 61, F0 52, 2 times 61 minus 52 minus 38 into H 20. तो when you will solve this you will get 60 plus 9 by 32 into 20. तो आगे बच्चे आप इसको सॉल्व करते हो you will get this like this. So 60 and converting into decimals you will get 5.625 and here the mode of the data will be 65.25. So this is how basically we can calculate the mode of the given data.